Jai Hind, aspirants. I hope you all are doing well. Welcome to your own channel. So far, we have uploaded 3 videos for polity. Now, this session is for history, particularly modern history. In this session, we are going to solve some 10 questions of modern history. Now, when we are solving these questions, I will also discuss the theory around that. So, what is the main motive of this class is not just to only, read the question, tell you this is the answer, and that's it. No. In this, we are also going to see, we are going to explore the other options, and we are also going to see the theory or the history around that particular question, right? So, this video will be around 15 minutes, 15 minutes duration, and in this, I will cover 10 questions. These 10 questions I have taken from various exams, so so that I'm aiming to give you that depth in this particular question. Now this is about me. We have already discussed this in the first lecture which we had. So I have some experience in the defense exams and also have some experience in state PCS exams. Now this is the first question. If you see, this particular question was asked in Madhya Pradesh set history optional conducted in the year 2022, during which period Tilak remained in Mandale jail. Now, this is a very interesting history revolving around B.G. Tilak, Bal Gangadhar Tilak. So, if you know Bal Gangadhar Tilak, he was also called as Lokmanya, particularly active in the state of Maharashtra. He was born in 1856 and he died on August 1, 1920. And the same day, Gandhiji started the non cooperation movement, right? So, if we talk about B.G. Tilak, you know he is one of the leaders of the Lal Bal Pal trio of the Indian National Congress, right? And he is one of the extremist leader of the Congress. If we talk about Tilak, Tilak जी ने दो न्यूज़पेपर्स निकाले थे. You all know these two newspapers. One is Kesari and the other one is Maratha. Kesari and Maratha. So if we talk about Kesari, Kesari was a Marathi newspaper. It was a Marathi daily. Whether Maratha was an English weekly. Both of these newspapers were started in the year 1881. आपको पता होगा कि newspapers are very very important when we talk about modern history, right? You might have seen they ask questions ki who started XYZ newspaper, right? So केसरी मराठा these were started by BG Tilak. Now BG Tilak के बारे में बात करते हैं तो BG Tilak is credited with Ganesh festivals and Shivaji festivals. आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में या all over India there is गणपति festival, 10 days के गणपति का festival, and this started initially in the year 1893. He started celebrating Ganesh festival because वो चाहते थे कि लोग इकट्ठा आए and discuss करें. And in the year 1896 he started Shivaji festival. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महाराष्ट्र में मनाई जाती है ऑन 19th of Feb 1630. छत्रपति शिवाजी महाराज वाज बोर्न एज पर दी ग्रिगोरियन कैलेंडर. तो उस ये जो शिवाजी महाराज जयंती ये मनाना 1896 से चालू किया था, एंड ये भी आपके बीजी तिलक ने किया. और बीजी तिलक के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने? वॉज ही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कोई भी सेशन को इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक चीज है, ही इज एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग. आपको पता होगा होम रूल लीग के साथ ही इज एसोसिएटेड. इनफैक्ट अप्रैल 1916 में इन्होंने अपनी होम रूल लीग चालू की थी जिसके अराउंड 6 ब्रांचेस थे. बॉम्बे सिटी में इनकी कोई ब्रांच थी, देर वाज नो ब्रांच ऑफ तिलक्स होम रूल लीग इन बॉम्बे सिटी, राइट? बॉम्बे सिटी में जो थी इट वाज दी एनी बेसंस होम रूल लीग. दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा कि BG Tilak was one of the instrumental leaders behind the signing of the Lucknow Pact of the Congress. लखनऊ पैक्ट जो कब साइन हुआ था आप सभी को पता होगा, 1916 में साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट. हु प्रिसाइडेड ओवर दैट सेशन? इट वाज AC माजुमदार. अंबिका चरण माजुमदार जो थे उन्होंने उस सेशन को प्रिसाइड किया था, राइट? अभी इसकी बीच की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, राइट? 1908 में तिलक जी के न्यूज़पेपर में, दैट इज केसरी में, ही पब्लिशेस एन आर्टिकल एंड द ब्रिटिशर्स, इट इज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, एंड ब्रिटिशर्स जो है उन्हें अरेस्ट करते हैं ऑन 3rd of July 1908. 3rd of July 1908 Tilak is arrested and Tilak is sentenced for 6 years of jail. 6 years of jail on the charges of sedition. He's So what are the charges? Sedition यानी देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता है for 6 years and he is sent to मंडाले. तो आपको पता होगा मंडाले, ये जो जेल है ये अभी कहाँ पर है? मंडाले जेल.
यस, इट इज इन द कंट्री ऑफ म्यांमार। म्यांमार में है। तो तिलक जी 6 साल के लिए इस जेल में होते फ्रॉम 1908 टू 1914, एंड इस जेल में जब ये होते ही राइट्स अ बुक कॉल्ड एज गीता रहस्य। गीता रहस्य तकरीबन आई गेस अराउंड 400 पेजेस की इनकी ये किताब है, गीता रहस्य। वो उस समय वो लिखते हैं, एंड सी इज द आंसर। जैसे ही वो बाहर आते हैं 1914 में, तो तुरंत 1915 में उनका काम चालू हो जाता है। फिर आपको पता होगा 1916 में वो होम रूल लीग की स्थापना भी करते, होम रूल लीग, एंड देन लखनऊ पैक्ट साइन करने भी इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। नाउ तिलक जी के बारे में, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि ही वाज अपोज टू सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स, देयर इज वन सच इंसिडेंट व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस, दैट वाज द 1891 का जो हमारा एज ऑफ कंसेंट बिल था, राइट। 1891 एज ऑफ कंसेंट बिल। आपको पता होगा इस बिल को लाने के पीछे बेहराम जी मलबारी was one of the instrumental persons in behind this age of consent bill. Now this bill sought to increase the marriageable age of girls, मतलब जो फीमेल है उनका मैरिजेबल एज जो है वो 10 से 12 साल ये बिल करने वाला था। तिलक अपोज दिस बिल। नाउ तिलक जी का कहना था कि द ब्रिटिशर्स शुड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस कस्टम्स, विद आवर रिलीजियस कस्टम्स। ही सेड दैट ही इज रेडी टू डू इट व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट डज इट। तो इनका कहना था कि भारत की सरकार डिसाइड करेगी कि भारत के कस्टम्स में क्या होगा, राइट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आई हैव ट्राइड टू कवर तिलक जी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आई कुड सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। होप यू ऑल नोट इट डाउन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who founded the India Home Rule Society, known as India, popularly known as India House, in 1905 in London. Now सबसे पहली बात, when we talk about revolutionaries, भारत में जो revolutionaries हैं उनके बारे में बात करते हैं तो there are various revolutionary societies which operated in India. तो हम लोग बात करें मित्र मेला हो जाए सावरकर जी की, जो उन्होंने 1899 में नासिक में बनाई थी अपने बड़े भाई के साथ, मित्र मेला, एंड इट वाज रीनेम्ड एज अभिनव भारत इन 1904, मित्र मेला। देन वी हैव 1902 अनुशीलन समिति, बंगाल में, अनुशीलन समिति। देन वी हैव युगंतर पार्टी अगेन इन बंगाल, एंड उसके बाद वी हैव 1923 में आपकी एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड 1928 में एचआरए का नाम बदल के हो जाता है एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। Right now, these were the revolutionary organizations operating on Indian soil. Now, there were certain which were operating in on foreign soil. तो उसमें गदर पार्टी आपको पता होगा, सोहम सिंह बाकना, लाला हरदयाल उसके साथ एसोसिएटेड थे। मदन लाल ढींगरा की जब बात करते तो इज एसोसिएटेड विद 1909 असैसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली, राइट। कर्जन वाइली जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, उनको इन्होंने इनको मदन लाल ढींगरा जी ने असैसिनेट किया था। फिर इन्होंने कोर्ट में वो दलील दी थी कि फाइटिंग अगेंस्ट द जर्मन्स is patriotic for the Britishers, then fighting against the Britishers is patriotic for me as an Indian. तो इन्होंने इनका ये दिया था। देन बरिंद्र घोष की बात करते तो बरिंद्र घोष इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जुगंतर। ये आपके श्री अरबिंदो घोष के बड़े छोटे भाई थे, एंड जो जुगंतर जो एक बंगाली वीकली है उसके ये फाउंडर थे। इट इज अ वीकली, एंड श्री अरबिंदो घोष आपको पता होगा कि एसेज ऑन गीता वगैरह उनकी किताब वगैरह है। लाला हरदयाल इज एसोसिएटेड विद दी गदर पार्टी, इनफैक्ट इंडिया हाउस के साथ भी है। इसका आंसर सीधा मैं बता देता हूँ, इट इज श्यामजी कृष्ण जी वर्मा। और श्यामजी कृष्ण जी वर्मा के बारे में बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1857, डाइड इन द ईयर 1930। अभी इनके बारे में बात करें तो इंडिया हाउस जो इन्होंने बनाया था लंदन में, इट वॉज एक्चुअली वॉट अ हॉस्टल। ये एक हॉस्टल था, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स लंदन में पढ़ रहे हैं उनके लिए दिस वाज एन हॉस्टल, एंड वहां पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता था टू टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल रूल। एंड इस हॉस्टल में आपके वी डी सावरकर, दैट इज विनायक दामोदर सावरकर रह चुके हैं, वी डी सावरकर। इस हॉस्टल में लाला हरदयाल वाज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस, लाला हरदयाल। देन इसके साथ पांडुरंग महादेव बापट, जिन्होंने बॉम्ब बनाना सीखा था, तो ये दीज ऑल वर एसोसिएटेड विद दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस, इंडिया हाउस जो बनाया था 1905 में, वो श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने। प्लस इंडिया होम रूल सोसाइटी भी थी, प्लस इनकी एक जर्नल भी थी जिसका नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। सो यू शुड नो दिस, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ये जर्नल भी किनकी थी? पंडित श्यामजी कृष्ण जी वर्मा, ठीक है, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, राइट। ओके। दूसरी चीज 1905 से हमें और क्या याद आता है? 1905 अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जाके देखें तो 1905 में वी हैव द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन हु वाज द ब्रिटिश वॉइसरॉय।
उन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया। 1905 के फिर वी हैव दी बनारस सेशन ऑफ द कांग्रेस, बनारस सेशन ऑफ द कांग्रेस विच वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, हु प्रिसाइडेड इट? जीके गोखले। जीके गोखले आपको पता होगा, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ एम के गांधी। जीके गोखले की एक सोसाइटी थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इन द कमेंट सेक्शन आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाट वाज दी मोटो और व्हाट वाज दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, राइट? 1905। ठीक है, तो ये सी इसका आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑन विच डे डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज सॉल्ट सत्याग्रह? ना आपको सभी को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया? अगर हम बात करें दांडी मार्च की, गांधी जी का दांडी मार्च सबसे पॉपुलर मूवमेंट था। दिस इज नथिंग बट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको पता होगा गांधी जी ने मार्च 12 1930 को ये चालू किया था। ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से ही स्टार्टेड विथ 78 फॉलोअर्स। 78 फॉलोअर्स उन्होंने स्टार्ट किया एंड ही वेंट टू दांडी बीच, दांडी बीच, एंड ही एक्चुअली ब्रोक व्हाट? द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ उन्होंने तोड़ दिया। और वो कब पहुंचे? वो पहुंचे अप्रैल 5 को, बट सॉल्ट लॉ उन्होंने ब्रेक किया अप्रैल 6 1930। तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 240 माइल्स डिस्टेंस था। इजी क्वेश्चन था। आपको पता होगा दांडी मार्च के टाइम पे द वॉइसरॉय वाज लॉर्ड एरविन। फिर दांडी मार्च के बाद काफी ज्यादा, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो दांडी मार्च के बाद जहां जहां भी कोस्टल है वहां पे तो सॉल्ट लॉ ब्रेक होना चालू होते, प्लस इंटरनल में देयर आर दिस फॉरेस्ट लॉस, तो वो फॉरेस्ट लॉज भी ब्रेक होना चालू हो जाते हैं, राइट? सो इट वाज अ मास मूवमेंट, इट स्टार्टेड अलोंग विद दिस। इसके पहले दांडी मार्च के जस्ट पहले आपको पता होगा 1929 लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, जहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन डिक्लेयर होता है। 1930 में देर इज नो सेशन ऑफ कांग्रेस बिकॉज सीडीएम चल रहा होता है। एंड 1931 में आपको पता होगा दो काफी चीजें होती है। गांधी इरविन पैक्ट होता है फेब मार्च में, उसके बाद भगत सिंह का एग्जीक्यूशन होता है 23 ऑफ मार्च, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। एंड उसके बाद दिसंबर 1931 में देर इज सेशन ऑफ कांग्रेस जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिसाइड्स ओवर दैट सेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज पास्ड, राइट? ये सब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 12 मार्च 1930। नाउ देयर आर सर्टेन डेट्स जो आपको याद ही होने चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो रनिंग फ्रॉम दोज डेट्स। Okay, let us move forward to the next question. When was the All India Congress Socialist Party formally started? मतलब ये पार्टी जो है ये कब स्टार्ट हुई? नाउ अगर आप देखो तो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन। नाउ अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी या कोई भी मॉडर्न इंडिया की बुक पढ़ी होगी तो यू नो दैट 2 years आर गिवन फॉर अस। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द अदर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। Now, this Congress Socialist Party was founded in the year 1934 and this was founded in the year 1936. This much we know. अभी इन्होंने क्या पूछा कि 1934 में कौन सा महीना, तो this option will go and this will go. Right now, let us dive into details. We also know that the founding members of this Congress Socialist Party, initially it was formed as an organization within the Congress. So the founding members were Acharya Narayan Dev, right? Acharya Narayan Dev एंड जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। आपको पता होगा इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी, इनसे जुड़े हुए व्यक्ति है जेपी नारायण। जेपी नारायण वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड आचार्य नारायण देव जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे उनके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राइट? एंड ये 1934 में बनी थी। अगर इफ यू डाइव इनटू डिटेल्स तो इट इज अक्टूबर 1934 एंड कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? बॉम्बे में, यानी मुंबई में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। सो द करेक्ट आंसर इज सी, अक्टूबर 1934। ऑल इंडिया किसान सभा की बात करते हैं तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना होती है 11th of April 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा इज दिस थिंग एंड इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। दूसरी चीज आपको पता होगा इसके सेक्रेटरी होते हैं एनजी रांगा। एनजी रांगा वाज द सेक्रेटरी। नाउ एक और आपको पता होगा कांग्रेस से जुड़ी, दैट इज आइटक
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगेन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये बनी थी 1920 में आईटक में। आईटक की स्थापना में तिलक जी का योगदान था, बट ही वाज नॉट देयर फॉर द फर्स्ट मीटिंग बिकॉज ही डाइड ऑन August 1। एंड आपको पता होगा द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आईटक वाज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आईटक एंड इसके सेक्रेटरी थे डीसी लाल। डीसी लाल वाज द सेक्रेटरी, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not a member of the cabinet mission? Now very easy question, आपको सीधा पता होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946, राइट। 1946 में आया था। 3 members were there in the cabinet mission: Patrick Lawrence, A.V. Alexander, and Sir Stafford Cripps. Who was the president of this? Who was the chairman? Patrick Lawrence, because he was the secretary of the state for India, right? Secretary of the state for India, ये पोस्ट कब आई थी? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858, इससे ये पोस्ट आई थी। इन द कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू टेल मी हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? इन द कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू टेल मी। तो क्या पूछा कि हु वाज नॉट अ मेंबर? सीधा सीधा है, लॉर्ड वेवल मेंबर नहीं थे, बिकॉज लॉर्ड वेवल कौन थे उस समय? लॉर्ड वेवल वाज दी वॉइसरॉय। फिर इनका एक वेवल प्लान भी है, वेवल प्लान 1935 में इन्होंने दिया था, राइट। ओके, स्टैफर्ड क्रिप्स की बात करते तो ये क्रिप्स मिशन लेके आए थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942, बट दिस क्रिप्स मिशन आल्सो फेल्ड, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द लखनऊ पैक्ट और द कांग्रेस लीग पैक्ट टेक प्लेस? थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, 1916 में ये पैक्ट हुआ था बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। नाउ सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इवेंट्स। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग इज फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग के फाउंडर्स होते हैं नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड आगा खान। They led a delegation and they went and met Lord Minto II, who was the then viceroy, and they formed the Muslim League. Now, immediately 3 years after the formation of Muslim League, in the year 1909, by Morley Minto reforms, Muslims they are granted what? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। मुस्लिम्स को क्या मिलते हैं? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिलते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मुस्लिम्स को मिलते हैं। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अपोज करती है। बट बीच में क्या होता है, 1907 में देयर इज द सूरत स्प्लिट इन द कांग्रेस। कांग्रेस में सूरत स्प्लिट होती है, सूरत में कांग्रेस स्प्लिट होती है। सूरत स्प्लिट के प्रेसिडेंट कौन थे? यू आर गोइंग टू पुट मी टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सूरत स्प्लिट में क्या होता है? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट होते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर पहले हमने देखा 1908 में तिलक ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन इज सेंट फॉर 6 years दिस थिंग प्रिजन इन मंडाले जेल। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं 1916 में काफी चीजें होती है। पहली तो अप्रैल 1916 में तिलक जी की होम रूल लीग बनती है, होम रूल लीग ऑफ तिलक, आई राइट टीन बिट ब्रैकेट। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसन जी की होम रूल लीग बनती है, ठीक है। एंड देन इन दिसंबर 1916 यू हैव द लखनऊ पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय AC माजुमदार। अभी लखनऊ पैक्ट से देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज द एक्सट्रीमिस्ट्स are admitted back to the Congress. Second thing, Congress accepted the All India Muslim League's demand for separate electorates, and कई books में लिखा गया कि this was one step behind, this was a retreat by the Indian National Congress. So सीधा आते 1916 is the answer. Moving forward to the next question. Now ये question जो आता है, this question covers the topic educational developments in British India. एजुकेशनल डेवलपमेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में एजुकेशन या शिक्षा को लेके क्या क्या हुआ है? नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पूछा है इंडिया में, तो विच इज दैट? नाउ सबसे पहले आपको पता होगा एजुकेशन से रिलेटेड देयर वाज दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उस चार्टर एक्ट के तहत ₹1 लाख were set aside per year. 1 lakh per year was set aside by the East India Company for the promotion of education in India, right? For the promotion of education in India. उसके बाद मैकॉलेज रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन आता है, मैकॉलेज रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन, ये कब आता है? इन द ईयर 1835। नाउ मैकॉले इसमें एक थ्योरी देता है, उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरी? इस थ्योरी में मैकॉले ये कहता है कि कुछ इंडियंस को सिखाओ
एजुकेट सम इंडियंस, फिर वो अपने से नीचे लोगों को सिखाएंगे एंड वो फिर अपने से नीचे लोगों को सिखाएंगे। तो कुछ लोगों को पढ़ाओ, फिर धीरे 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 वो बाकियों को ये करते जाएगा। दिस इज व्हाट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, एंड ये उन्होंने दिया था February 2, 1835। नाउ February 2 आपको पता है, इमीडिएटली February 2 सुनते ही आपके दिमाग में आता है वेटलैंड्स, राइट? ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन, राइट? 1971 में साइन हुआ था, 1975 में एनफोर्स हुआ, इंडिया ने 1982 को उसको एनफोर्स किया, राइट? इंडिया में हाल फिलहाल में कितने रामसर साइट्स है? 80 रामसर साइट्स है। 2024 की बात करें तो 80 रामसर साइट्स है। किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तमिलनाडु 16, देन यूपी 10। ठीक है, करंट का जिक्र है ये। ओके, तो मैकॉले के मिनट में मैकॉले ने जस्टिफाई किया कि इंग्लिश शुड बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। नाउ इस वुड्स डिस्पैच में वो कई बातें कहता है, जैसे वो कहता है कि एजुकेट इंडियंस ऑन द वेस्टर्न कल्चर, देन ही टेल्स कि द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो भी बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी स्थानीय भाषा में कर दीजिए। दूसरा बोलता है कि हाई स्कूल शुड बी एंग्लो वर्नाकुलर, हाई स्कूल में इंग्लिश प्लस उसकी अपनी एक भाषा होनी चाहिए, एंड बट कॉलेज एजुकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इंग्लिश। कहते हैं कि कॉलेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। और वुड्स डिस्पैच के तहत वो बोलता है कि लंदन में जैसी यूनिवर्सिटी है वैसे भारत में भी यूनिवर्सिटीज करवाओ। तो उसके तहत भारत में 3 यूनिवर्सिटीज बनती है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और उसके बाद आपकी बनती है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनती है 24 जनवरी 1857, 24 जनवरी 1857 को कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनती है। मद्रास यूनिवर्सिटी आपकी बनती है September 5, टीचर्स डे होता है, राइट? 1857। एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी आपकी बनती है 18 जुलाई, 18 जुलाई 1857। नाउ 18 जुलाई सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? 18 जुलाई, व्हाट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी हियर द डेट 18 जुलाई? 18 जुलाई, एक तो अभी 57 18 जुलाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी, 18 जुलाई 1947 क्या हुआ था? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव्ड रॉयल एसेंट, राइट? मतलब ब्रिटेन के जो राजा थे इन्होंने इस पे साइन किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, 18 जुलाई 1947, राइट? तो इसका आंसर ये है। फिर उसके बाद जो आपको जो हंटर कमीशन है वो 1882 में आया था। हंटर कमीशन विलियम हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि द स्टेट शुड मेंटेन रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड इट शुड डेवलप प्राइमरी एजुकेशन। ये कुछ 3 अप्रैल 1882 को आया था। देन उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी लॉ आपको दिखता है 1904। ये जिस कमीशन के रिकमेंडेशन से आया था, द नेम ऑफ दैट कमीशन वाज थॉमस रेले कमीशन, थॉमस रेले कमीशन। ये थॉमस रेले कमीशन आया था 1902 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन, और इसने कहा कि इंडिया में इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाओ। तो इसलिए ये इंडिया यूनिवर्सिटी लॉ पास हो, उसके बाद इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज बने। उसके बाद एक आता है सैडलर कमीशन। अगर आप में से कोई किसी पीसीएस के लिए पढ़ रहा है या यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है तो सैडलर कमीशन के बारे में सुना होगा। सैडलर कमीशन 1917 में आया था ड्यूरिंग लॉर्ड केम्सफोर्ड टेन्योर, और सैडलर कमीशन का काम था कि जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसके प्रॉब्लम्स को सुधारना या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एंड सजेस्ट सम वेज। तो ये उस समय है। उसके बाद हार्टोग कमिटी ऑन एजुकेशन जो 1929 में आई थी, राइट? सो दीज वर दी सर्टन दिस थिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद आपको पता होगा फिर राधा कृष्ण कमीशन बैठता है 1948 में, फिर वो रेकमेंड करता है यूजीसी, फिर यूजीसी बनता है, फिर एनसीईआरटी 1961 में बनता है, वगैरह वगैरह। दैट विल सी सम अदर डे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स या एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। आपको पता होगा कार्नेटिक वॉर्स कोरोमंडल कोस्ट के आसपास लड़े गए थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स थे ये। 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, देयर वर 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, राइट? एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने लड़े गए। अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर वाज फॉट फ्रॉम 1746 to 1748. Second was fought from 1749 to 1754, and third was fought from 1757 to 1763. This is precisely known for the 1760 Battle of Wandiwash, right? Battle of Wandiwash, and the English defeated the French in this battle, and subsequently this particular Anglo-French War, Third Anglo-French War, was ended in the year 1763 by the Treaty of Paris. एंड आपको पता होगा इस ट्रीटी के तहत द फोर्टिफिकेशन ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया वाज बैंड, राइट? तो इजी था ये। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता होगा लॉर्ड लिटन इंडिया के वॉइसरॉय रह चुके हैं। इनके टाइम पे काफी ज्यादा चीजें हुई, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, राइट। जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स है उनको पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो होके गुजरना पड़ता था टू गेट पब्लिश। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 उनके टाइम पे हुआ। सो दिस इज देयर। आर्म्स एक्ट भी 1878 उनके टाइम पे हुआ। स्ट्रैची कमीशन ये आया था उस समय डेक्कन में काफी ज्यादा फेमाइन आई थी, तो फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था, तो रिचर्ड स्ट्रेची के अंडर ये एक स्ट्रेची कमीशन आया था, तो ये भी उनके टाइम पे हुआ था। इल्बर्ट बिल, ये इल्बर्ट बिल ये था, ये 1883 का है। नाउ इल्बर्ट बिल वाज व्हाट, पहले कैसा होता था कि जो भी यूरोपियन प्रिजनर्स थे उनको ट्रायल, यूरोपियन जो थे लोग थे उनको बस यूरोपियन जजेस ही ट्राई करते थे। बट लॉर्ड रिपन इंडिया में आए थे एंड लॉर्ड रिपन ने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद इल्बर्ट बिल लाया था उन्होंने, और इस इल्बर्ट बिल के तहत जो यूरोपियंस थे उनको सीनियर इंडियन जजेस ट्राई कर सकते थे। बट इससे यूरोपियंस नाखुश हुए, तो फिर उन्होंने ये डिमांड की और ये बिल वापस लिया गया। सो दिस इज नथिंग बट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अगर आप 10th की आईसीएससी किताब पढ़ोगे तो उसमें दिया है, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसमें भी दिया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तक क्वेश्चन था, इल्बर्ट बिल वो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द ट्रीटी, विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपको पता होगा ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आए थे, तो वो सबसे पहले बंगाल में उन्होंने दो वॉर्स लड़े। वन वाज बैटल ऑफ प्लासी 1757 में एंड द अदर इज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद 1765 में दे साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एंड उस ट्रीटी के तहत दे गॉट द दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मींस राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। कहाँ कहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करने लगे? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा से वो टैक्सेस कलेक्ट करने लगे, राइट। टॉकिंग अबाउट दी सेकंड ऑप्शन, अगर हम लोग ट्रीटी ऑफ सुगौली की बात करें तो वो 1816 में साइन हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल, एंड ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में 7 अप्रैल को भी सेट एग्जाम, महाराष्ट्र सेट एग्जाम में आया था कि गवर्नर जनरल को पहचानो, मैंने वो चैनल पे डाल दिया है। ट्रीटी ऑफ सुगौली ये हुई थी आफ्टर एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से लेके 1816 में, और उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ सगोली जो थी, इट वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गुरु मिश्रा, एंड इससे बाउंड्री लाइन बनी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल की। ट्रीटी ऑफ बसेन की बात करें, ये साइन हुई थी दिसंबर 31 1802, दिसंबर 31 1802 को ये साइन हुई थी, एंड दिस वाज साइंड आफ्टर द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। आपको पता होगा 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, पहला हुआ था 1775 से 82, सेकंड हुआ था 1803 से 1805 एंड थर्ड हुआ था 17 टू 19, 1817 टू 19। ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की बात करें तो ये आफ्टर फर्स्ट वॉर हुआ था। इट वाज साइंड ऑन May 17, 17 मई 1782, 1782 को ये साइन हुआ था, एंड ये सारे ट्रीटीज है। तो in this particular video we have seen 10 questions of modern history। फिर मैंने आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने का प्रयत्न किया है। If you like the series, join my Telegram channel, and मैं और videos लाऊंगा। For more 2 videos will put for history and more will put for geography as well। ठीक है, so if you want for polity, do comment, मैं और videos लाने की कोशिश करूंगा। So we'll stop here today। God bless you all।